मुझे जो वचन मिला है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद देते इस वचन को। और प्रभु यीशु ने ये भी कहा है कि हम लोग कोई बातों के लिए चिंता ना करें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। तो सेकंड जो बात बोलते हैं वो हमें सदा आनंदित रहने के लिए हम लोगों को प्रार्थना परमेश्वर सुने या ना सुने, ये बात हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर हमें मिले ना मिले वो ना देखे, परंतु हमें परमेश्वर का आगे का जो बात हम लोगों को जो सीखना चाहिए कि परमेश्वर हमें आगे क्या दे रहे हैं और उस तरह से हमें चलना है। ऐसा करने से हमें जो हमारा अंदर की जो कमजोरियां हैं वो निकल जाती है, वो या नहीं जाती, या हमारा प्रार्थना का उत्तर मिला नहीं मिला वो नहीं हम लोग देखते, परंतु परमेश्वर का जो आगे हम लोग को देने वाला वो जो बात देता है वो बात है, वो बातों के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो परमेश्वर ने जो वचन कहा है हमारी योजना के बारे में, जो योजना है हमें वो देता है वो कुशल की है, हानि की नहीं है, परंतु और हर एक हमारे जो आशा वो पूरी करने वाला है। तो ये सब बात करते समय हम लोग ये सोचना चाहिए कि हमें ये सब अनुग्रह से मिला है, सब कुछ मिला है, जो कुछ अनुग्रह से मिला हम लोग याद करना चाहिए। याद करते करते परमेश्वर हमें हर एक जो बातों को सिखाता है, वो चाहता है हम परमेश्वर यीशु मसीह का जो स्वभाव को पहने और दीन और नम्र ऐसा स्वभाव को पहने, और हमारा अंदर जो प्रेम रहे, क्षमा रहे, ये बात हमारा अंदर रहना चाहिए। और परमेश्वर की बातों को सीखने का जो हमें ये मौका समझ के हम लोग लेना है। आपको जो प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे जो ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे मेरा जो याचना को या प्रार्थना को उत्तर देते हैं या नहीं मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैं कैसा आगे बढ़ूँ, परमेश्वर में आगे बढ़ूँ। धन्यवाद देते हैं। Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today, as we recognize Women's Day, I want to reflect on Colossians 3:14, which says, "Above all, clothe yourselves with love, which binds everything together in perfect harmony." This verse is part of Paul's letter to Colossians, where he speaks about the new life we have in Christ. He encourages believers to put on godly virtues, that is, compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. But above all, he tells us to put on love, because love is what holds everything together. In the same way, women play a significant role in demonstrating this love in our families, churches, and even our communities. Their patience, kindness, and sacrifices reflect the love that Paul speaks of. However, this love is not just human effort, it comes from Christ. When we abide in Him, His love flows through us, enabling us to live in harmony with one another. So, as we acknowledge this day, let us remember that love is the foundation of Christian living. Whether as mothers, daughters, sisters, or friends, may we all seek to put on love as God has called us to do. Thank you and God bless. Praise the Lord. My scripture for this occasion is from Songs of Solomon 4:7. Actually, I was struggling to expound or exhort on the scripture. It is a very profound statement made by a lover for his bride. The scripture says, Songs of Solomon 4:7, "You are altogether beautiful, my darling. There is no flaw in you." In today's times, husbands or lovers may say such things to their wives or girlfriends.
So the initial stage is very rosy and lovely, and everything feels too good and romantic and beautiful. But as time passes by, the love and admiration fades away, and the words are no longer sweet or cherishing. For man looks at the external or the physical beauty that meets the eye. But as time passes, the physical beauty fades away due to old age, troubles, tension, stress, and all sorts of things that a woman goes through. But praise God that it is not true for Christ. He loves me not for my external appearance, but for the spiritual beauty. He loves me even though I am short, stout, and old, out of shape. He loves me in spite of all my flaws. More importantly, He loves me in spite of all my sins and shortcomings. Praise God for Jesus. He loves me, for I am made in His image. He is a perfect God with absolutely no flaw or blemish. Although I am flawed and blemished internally due to sin, He still loves me and calls me His own. He cherishes in me. He wants me, no matter what the world speaks about me or about my sins and our flaws or my faults. Jesus not only loves me but also forgives me and sanctifies me. And hence I am the most beautiful in spite of all my flaws, faults and sin. A very happy Women's Day to all the wonderful and beautiful women of our church. So the verse that I got was from Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. So apt for this day, wonderful women of our church. I take this verse not only for myself but for our entire church, that it is very clearly written that I can do things through Christ who gives me strength. So I can do all things, but I can't do anything. There's a lot of difference between the word all things and anything, because God has blessed us so immensely, brothers and sisters. I put this message even for our brothers in the church, that we women have been given special grace and power to look after the kingdom of God along with our families. And I see this in our church, that each woman is immensely blessed. So I take this opportunity to strengthen each and every woman of our church, that God's hand is there in every circumstances of our life, only if we submitted 100%, not even to keep 1% to ourselves. Because it is clearly written in this word that when He gives everything, when we submit everything in Christ's hands, we can do everything. That's when the grace comes into our lives. And I strengthen each and every woman today in our church, that it is such an auspicious day for us. The 8th of March every year is celebrated as Women's Day. So I know for many of us Women's Day is every day, but yes, this day is meant to strengthen each and every one of us, to give opportunities. And I mainly also tell us that each and every one of us are blessed with talents. So to use these talents in our churches. So it's very important. Otherwise what happens, God will take all our talents and give it to someone else. So use our talents in the church. Many of us are using it. Many of us have to use it. So I pray for special grace for this entire year for all of y'all. And I love you all, and because each and every one of y'all, every day and every week that I see y'all, I learn something new. So have a wonderful day and God bless.
प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु को धन्यवाद। सैम 28:7 यहोवा मेरा बल और मेरी टाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में जो परिस्थिति थोड़ा ऊपर नीचे जाते वक्त मैं निराश होती हूँ, खास करके ऐशर को देखते हुए थोड़ा चिंता करती हूँ। तो ये वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, ताकि प्रभु बोलता है उसके ऊपर पूरा हृदय से विश्वास रखने का है। और साथ साथ मेरे को प्रोवर्ब्स 3:5-6 तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा करना। और दूसरा 1 पीटर 5:6-7 इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। सचमुच बहुत बार ये जीवन में ये वचन से मुझे मालूम पड़ा, जो परिस्थिति हमको आता है ना, हमको नम्र बनने के लिए, जैसा हम नम्र बनता है प्रभु उचित समय में हमको हमारा उत्तर मिलता है, ताकि हमको नम्र बनने का है और अपनी सारी चिंता उस पर डालने का है। और आइज़ाया 26:4 ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज, ये सारे वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मेरा चिंता मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। आशर को देख के एक दिन ना एक परमेश्वर सही समय पे हमको उत्तर देता है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हैप्पी वुमेन्स डे। Praise the Lord, Church. I want to thank and praise God for this verse, Ephesians 6:18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. This verse has really encouraged me to pray in the Spirit on all occasions and with all prayers and requests. And also to pray for one another, for our church people, for friends and families, everyone, especially for Lord's people. As well as I was meditating on another verse that is in Luke 22:44, and being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. This is before Jesus being crucified, how he was in agony and he prayed earnestly. So if Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the Maker of heaven and earth, if he was praying with such intensity, how much more I need to pray, and how much more my prayer life should be increased. Also, earlier Matthew 14:23 says that he used to dismiss the crowds. He went up on the mountain by himself to pray. So our personal prayer life also plays an important role. Whenever we get time, whenever I get time, I need to have a one-on-one time with Jesus. So these all scriptures really encourage me to increase my spiritual prayer life. Thank you and wishing you all a happy Women's Day. Hello everyone, happy Women's Day to all the beautiful women. आज की इस वुमेन्स डे के स्पेशल में मुझे मिला वो इस वचनों को मैं आपके सामने बांटना चाहती हूँ। 1 Thessalonians chapter 5:11, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing। इसी वचनों को हम यदि हिंदी में पढ़ेंगे तो इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति के कारण बनो कि निदान तुम ऐसे करते भी हो। परमेश्वर खुद ही कहता है कि एक दूसरे को एंकरेज करने के लिए। कई बार हम कैसा होता है ना, जैसे मैं इस वचनों को अध्ययन कर रही थी, मुझे लिटरली अपने चर्च के लोग याद आए हैं, क्योंकि जब भी किसी के घर में कुछ कुछ मुसीबत आ जाती है, तो हमारे चर्च ऐसा है कि उस मुसीबतों को, किसी के घर में कोई बीमारी हो जाते हैं, कोई टेंशन में हो जाते हैं, यदि हम उन सारी बातों को चर्च में डिसाइड कर चर्च के लोगों के सामने बांटते हैं और देन आफ्टर वो सब लोग मिल के उस चीज़ के लिए
में प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को इंकरेज करते हैं, नहीं ये चीज़ तेरे लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है तो तेरा बीमारी तुझसे दूर हो जाएगी, तेरी बीमारी जल्दी ही परमेश्वर ठीक करेंगे। इस तरह से मोटिवेट वर्ड्स जो है, इंकरेजिंग वर्ड्स जो है, हम अपनी सभा से ही सीखे हैं। एक्चुअली मैंने अपनी सभा से ही सीखी हुई इन सारी बातों को, और मतलब आज की मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में सारी चीज़ों में देखा है इन सारी बातों को नहीं होता है। कोई कुछ चीज़ों को किसी को कुछ चीज़ रिक्वायरमेंट है, कोई बात उनसे शेयर कर, एक दूसरे को शेयर करेंगे तो लिटरली वो जो है हमें उस डिसअपॉइंटेड वर्ड से हमें बताते हैं, नहीं तो तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन सारी बातों को। बट परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति के कारण बनो, क्योंकि एक दूसरे को हम बिल्ड करने से ज्यादा उनको डिसअपॉइंट करते हैं और उनको डीमोटिवेट करते हैं, डाउन करते हैं। बट यहाँ पर आज की इस वचन मुझे अच्छा लगा, और लास्ट के वर्ड जैसे कि यदि आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो तुम ऐसे करते भी हो, परमेश्वर सच में हमें ही कह रहा है कि तुम ऑलरेडी इन चीज़ों को कर रहे हो ना, इसको कंटिन्यू करो। क्योंकि जब भी एक पर्सन जो है वो जो है उनकी तकलीफों से जुड़ रही है, वो तकलीफों में जाके ऐसे बोलते हैं ना, मिर्ची छटकना, उनकी दुखों में मिर्ची छटकना, इन सारी चीज़ों को नहीं, मतलब वो छोड़ के हम परमेश्वर के बारे में और उनको इंकरेज करेंगे तो वो पर्सन को और भी अच्छा लगता है। इसलिए परमेश्वर का एक वचन है, जैसे प्रभु इस संसार में लोग जो है शांति के लिए ढूंढते हैं, बट परमेश्वर खुद ही कहता है, यूहन्ना यदि 14:27 में वचन पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं तुम्हारा, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। शांति जो है परमेश्वर अपनी शांति हमें देना चाहता है। और वही वचन को यदि यशायाह 23:3 में पढ़ेंगे तो मुझे फेवरेट वचन है ये मुझे अच्छा लगता है इस वचन को जब मैं पढ़ती हूँ। जिसके मन तुझ में धीरज धरी हुई रहती है उन्हें एक पूर्ण शांति, परमेश्वर जो है ना उन्हें एक पूर्ण शांति के साथ उनको रक्षा करता है, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जिसके मन में, जब मैं सैड हो जाती हूँ, जब मैं मैं मेरी फीलिंग्स किसको शेयर करूं मुझे नहीं पता चलता है, वो टाइम पे मैं परमेश्वर को वचन परमेश्वर से बात करती हूँ। लिटरली जहाँ पर जा रही हूँ आ रही हूँ वो टाइम पे भी परमेश्वर से बात करती हूँ, और मैं एक दूसरों को इंकरेज करती हूँ। मेरी फ्रेंड सर्कल में बताती हूँ मैं इन सारी बातों को। प्रभु को धन्यवाद करते हुए सही अच्छे समय मुझे देने के लिए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। Hi, happy Women's Day. The word I got is Jeremiah 31:3. I have loved you with an everlasting love, and I have drawn you with an unfailing kindness. What does it mean that God loved us with an everlasting love? This everlasting love points to the depth and breadth of God's love. I have understood 3 qualities from this verse. First one, God's everlasting love always loves me first. He is the first one who loved me. Before I formed in a womb, He loved me first. And whoever in this world loves me, but He is the one who loves me most. And the third thing, God's love is always, He always loves me. God's everlasting loves always, whatever be the circumstances, He always loves me. The one who have created this universe came to this earth to show His love towards me. And I know I'm really special in the eyes of my Creator. Happy Women's Day. Praise the Lord. Today we are going to see one aspect of the verse taken from 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Let all that you do be done with love, that is motivated and inspired by God's love for us. We believe that God loves us. God demonstrated His love towards us by sending His Son to be a living sacrifice for our sins. 1 John 4:12 says, "No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us." Loving God is not enough. We must fulfill the greatest commandment. The cross of Calvary on which Jesus died is not just vertical, but horizontal. That is love towards your fellow brother. 1 John 4:20 says, "If someone says, 'I love God,' and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also." We can make choices each day by being patient,
kind and forgiving. We can live in ways by obedience and trusting God by doing everything in love. Doing things out of love will help us to be more like our Lord Jesus. Paul tells us in this verse to be strong in our faith and to do everything in love, because faith works by love. Finally, this is why Romans chapter 13 verse 8 says, "Owe no one anything except to love one another, for the one who loves another has fulfilled the law." So thus, when we do everything in love, we are fulfilling the law of God. Amen. Praise the Lord, everyone. The verse that I got for this Women's Day is Matthew 10 verse 30. Even the very hairs of your head are numbered. We all know that this is in context of worry. हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, तो गॉड ने बोला कि इवन बाल की भी गिनती किया है. So बाल की गिनती बोले तो कोई नहीं करना चाहता है. It's so minute. अपने खुद के बच्चे हम इतना प्यारा लगता है, and we know every detail of our children, but हम बाल की गिनती नहीं करते और करना शायद नहीं पसंद करेंगे. But God in heaven takes care of those small details also, especially in concern with the events of our life, whether in past, present or in future. हमें वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. When God says, like for example, honor is only due to God and worship is only due to God, glory is only due to God. Similarly, when He says, do not worry, I know everything, whatever is going on. So this verse is very interesting because He's talking about God's knowledge. And He's not talking about this will happen, this will not happen. He talks about everything that you go through or we go through is known to God. So I am encouraged, and I want to encourage each of you that God knows what's going on in your life, and that is the confidence. However we feel in whatever moment, the confidence comes from knowing that He knows the numbers of my hair, all the details of my life, my problems, the good things, the bad things, everything, and He knows the details of them. When people, I would really make a small comment on hair because the verse talks about hair. Because people often tell me that I have got good hair and good density, good length. I don't have to maintain my hair and I don't have hair fall problems. And generally people can notice all this and they say, अच्छा है तुम्हारे बाल अच्छे हैं और मेरे बाल सफ़ेद नहीं होते जल्दी. तो मुझे इस बात को लेके बहुत अच्छा लगता है. And I often wonder how. तो मुझे आज ये वर्स आया तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी के भी लाइफ में एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो गॉड प्लान करते हैं. उससे नॉट ओनली हमें कंटेंट होना चाहिए बट ऑल्सो हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ही इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, especially the smallest of details of your life. So I want to thank God for all situations as He demands, and even the numbers of my hair, I thank God for that. Thank you. प्रेज़ द लॉर्ड. आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन्स. आज वुमेन्स डे के स्पेशल में प्रभु ने मुझे दिया गया वचन है कि 1 कोरिन्थी 13:4, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, अपने बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं. इसमें प्रभु हमें कैसा प्रेम करता है लिखा गया है. परमेश्वर का प्रेम धीरजवंत है, दयालु है, कृपालु है. उनका प्रेम कभी कम नहीं होता है. ऐसा नहीं कि कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ, ऐसा नहीं रहता. हमेशा उनका प्यार ज़्यादा ही रहता है. अपन कुछ भी करे, कितना गलतियाँ करे, कम नहीं, उनका प्यार भी कमी नहीं होता. वैसे ही प्यार उसका इतना ही प्रेम प्रभु ने एक स्त्रियों के अंदर भी दिया है. स्त्री इतना श्रेष्ठ है कि बाइबल में बोल नहीं सकते. आप सभी लोग भी जानते हैं स्त्री एक श्रेष्ठ है प्रभु बाइबल के वचन में. वैसे प्रेम एक माँ के अंदर भी, माँ भी कभी चिल्लाती है, डांटती है, कुछ भी करती है, लेकिन उसके अंदर भी उनका प्रेम रहता है. अपन गलती करे तो डांटती है लेकिन प्यार भी करती है. वैसे ही प्रेम सारे स्त्रियों के अंदर रहना चाहिए. बाइबल के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर के अंतिम स्थान में पुनरुत्थान के दिन भी फर्स्ट जो देखी वो एक स्त्री ही थी. फर्स्ट जो देखी एक मरियम ही थी. मरियम देखने के बाद ही सारे लोग देखे. इतना श्रेष्ठ है कि अपन सब लोग अपन जानते भी हैं. पर परमेश्वर ने अपने को एक स्पेशल रूप में देखा जाता है. इसलिए सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर का प्रेम, धीरज, कृपा सारे लोगों के अंदर रहना चाहिए. यही आज वुमेन्स डे का स्पेशल वचन है. थैंक यू. प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन. हमको धन्यवाद देती हूँ. परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो
दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है और उसने हमसे किया हुआ हर एक वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल पढ़ने के बाद सच में मुझे ऐसे लगा कि ये बाइबल ऐसे लगा कि ये बाइबल हर एक वचन जो है वो मेरे लिए लिखा गया है और हर एक वादा जो प्रभु ने किया है वो मुझे लगा था वो मेरे लिए किया है। और सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर एक परीक्षा में परमेश्वर ने मुझे अपने साथ, परमेश्वर ने मुझे कभी छोड़ा नहीं और परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही जताया कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। विश्वासी होने के बाद मेरे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई थी। उस समय मुझे ऐसे लगा था कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद है। बहुत सारी परीक्षाएं आई। जो आज मेरे बाजू की जो परिस्थिति थी वो बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे साथ था और मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया और सच में प्रभु के वचन ने मुझे सामर्थ्य दी। मुझे लगा था मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, मेरा भी कुछ नहीं हो सकता था, कुछ नहीं होगा, मेरे लिए अभी कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक वचन जो मेरे लिए लिखा है बाइबल में, हर एक वचन जो मुझे परमेश्वर ने हर एक दिन में, हर एक समय में, एक सही समय आने के बाद जो मेरे ऊपर प्रकट किया वो सच था और प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। और हर एक ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है और मैंने बताया है मेरे संसार के लोगों को जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मेरे आजू बाजू में रहते हैं, इवन मेरे परिवार को भी मैंने बताया कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ और परमेश्वर मेरा मुंह कभी लज्जित फज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर मेरे साथ है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की। बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसमें सामर्थ्य और स्थिर खड़ा रहने की एक क्षमता दी और उसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। और सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक बेटी करके बुलाया और एक परमेश्वर ने मुझे एक स्त्री का जन्म दिया और सच में मैं एक धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए। जैसे कि एक स्त्री होने के बाद अभी मैं एक माँ हूँ और प्रभु हर एक वो उस दौर में भी प्रभु मेरे साथ है और प्रभु का यही वचन है कि परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियाँ सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और सच में मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं सच में प्रभु ने मुझे सिंह के मुंह से छुड़ाया। मेरी गवाही। प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी ब्यूटीफुल वुमेन्स। एंड मुझे इस वुमेंस डे में मिला हुआ एक वचन परमेश्वर की ओर से, नीति वचन 31 में 29। बहुत से स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। और मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहती हूँ कि प्रोवर्ब्स 31 में 29, मेनी वुमेन्स डू नोबल थिंग्स बट यू एक्सेल देम ऑल। परमेश्वर इस वचनों में ही कहता है कि बहुत सी स्त्रियाँ अच्छे काम तो करते हैं बट उन सबों में तू श्रेष्ठ है। हालेलुया। ऑफ कोर्स मेंस आल्सो बेटर, उन लोग भी बहुत अच्छे हैं एंड वुमेन्स आल्सो वेरी गुड। परमेश्वर इस वचन में खास करके स्त्रियों के बारे में बोलता है कि तू उन सबों में श्रेष्ठ है। मेंस के अभी आजकल के दुनिया में तो मेंस और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वल में ही चल रहे हैं। एक समय में कहते हैं कि मेंस सब कर सकते हैं, अभी तो आजकल में गर्ल्स भी सब कुछ कर रहे हैं, कोई किसी में कम नहीं। ऑफकोर्स ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ हर एक स्त्री को एक अच्छा वरदान है। एंड मैं ये कहती हूँ कि स्त्रियाँ एक घर को इतने अच्छे संभाल सकती है जो मैन भी इतना परफेक्टली नहीं संभालता। वो अपनी पूरी घर को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल को, फॉर एवरीथिंग एंड जॉब एंड बाहर की और घर की हर एक बातों में वो अपनी ख्याल रखती है और हम लोग को संभालती है। मतलब ये बहुत के अच्छा है। ये वुमेन्स के अंदर एक अच्छी टैलेंट परमेश्वर ने हर एक के अंदर दिया है। बहुत सारी जो वुमेन्स है परमेश्वर की ओर से, ये जो उनके अंदर जो आया है एक अच्छा
इससे ऐसे ही परमेश्वर इस हम लोग वचन में भी देखेंगे, बाइबल में भी ऑफ कोर्स देखेंगे, बहुत सारे स्त्री ने बहुत अच्छे काम तो किए हैं। एंड हम वैसे दौरान में वैसे ही हम देखते हैं मार्ता और मरियम। जो मरियम जो है परमेश्वर के अच्छे मतलब एक अच्छे पोजीशन ऐसे इस वचन में कहता है कि परमेश्वर मार्ता से कहता है कि मार्ता मार्ता क्यों भी इतना चिंतित रहती है, क्यों भी इतना घबराती है करके परमेश्वर मार्ता से कहता है। और मरियम मार्ता से कहता है कि मरियम ने एक उत्तम बाग को उन्होंने चुन लिया है, वो है जो उसे छीन नहीं सकती। वो क्या है, परंतु एक बात अवश्य है कि अवश्य और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीन ना जाएगा। स्पेशली फॉर द वुमेन्स है, और हम जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, स्पेशली मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग ने चुना है परमेश्वर को, ये एक उत्तम भाग है हमारे जीवन के लिए। और परमेश्वर हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमसे हर समय वो हमारे साथ रहेगा। और स्पेशली ये वुमेन्स जो है सब बातों में श्रेष्ठ है या किसी में भी कमी नहीं, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी को मिला है। इसीलिए थैंक यू फॉर दिस एंड वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी वुमेन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मेरा वचन है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी ही प्रशंसा की जाएगी। तो इस वचन का जो पहला भाग है शोभा तो व्यर्थ है, इससे मुझे याद आया कि जब शमूएल को परमेश्वर दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजता है तो दाऊद से पहले उसके भाई उसके सामने आ जाते हैं। और ख़ास करके एलियाब के बारे में लिखा है कि एलियाब को देखकर शमूएल को ऐसे लगता है कि यही इज़राइल का राजा होगा, क्योंकि वो कद में और ऊंचा रहता है और दिखने में बहुत ही सुंदर रहता है, ऐसे वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर उसे कहता है कि मैंने उसको तुच्छ जाना है, वो इज़राइल का राजा नहीं है। और जैसा मनुष्य देखता है वैसा मैं नहीं देखता हूँ। मनुष्य जो है वो ऊपरी मनुष्यत्व देखता है, लेकिन मैं जो हूँ वो हृदय को देखता हूँ। तो मुझे ये कहना है कि दिखने वाली हर एक चीज़ जो है वो सुंदर नहीं होती अगर उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। एलियाब परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं था, लेकिन दाऊद परमेश्वर के साथ जुड़ा था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो शोभा झूठी है जो परमेश्वर से अलग है। फिर इस वचन का दूसरा भाग है कि सुंदरता व्यर्थ है। तो सुंदरता जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे सुंदरता जो है वो कम होती जाती है। लेकिन कितना सुंदर है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं वैसा वैसे हमारी आंतरिक सुंदरता जो है वो और बढ़ती जाती है, हम अंदर से और सुंदर होते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक पत्रस में कि तुम्हारा जो छिपा हुआ मनुष्यत्व जो है, तुम्हारा अंदर का मनुष्यत्व जो है वो नम्रता और दीनता की अविनाशी सजावट के साथ जो है वो सुसज्जित हो जाए। तो मुझे ये वचन, इस वचन का ये पार्ट बहुत अच्छा लगा जिसमें लिखा है कि अविनाशी सजावट, मतलब जो फेड नहीं होती है, ऐसी सजावट से परमेश्वर चाहता है कि हम जो है वो सुसज्जित बनते जाए। शरीर जो है वो फेड होते जाता है, लेकिन हमारा आत्मा जो है वो हमेशा नया होते जाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में नया होते जाए, और यही परमेश्वर को भाता है, यही परमेश्वर के दृष्टि से बहुमूल्य है, ऐसे परमेश्वर कहता है। तो खास करके स्त्रियों के बारे में परमेश्वर ने लिखा है कि ऐसी स्त्री जो है वो परमेश्वर का भय मानती है, इस तरह से अपने आत्मा को सुसज्जित करती है, वो जो है वो प्रशंसा के योग्य है। तो मैं अपने दिल से आप लोगों के लिए कहती हूँ कि आप परमेश्वर के नज़र में बहुमूल्य हो और प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दी है और इसलिए आप सुंदर हो। हैप्पी वुमेन्स डे।